Hello, my dear students. Welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we have completed lesson number 2 from our Science NCERT book Curiosity of class 7. Today we are going to start with the summary and the back exercise of this lesson. So chapter 2 is exploring substances acidic, basic and neutral, and we are going to start with the summary and question answers of this lesson. In a nutshell, means we are talking about summary here. Substances around us may be classified as acidic, basic and neutral in nature. So as we have already read this lesson and I have explained you that substances which are around us, all the things which are around us, these substances may be acidic, basic or neutral in nature. For example, when we talk about acidic things, they are sour in taste, which we have read in the lesson. When we talk about basic things, they are soapy to touch and slippery, and neutral, they are neither acidic nor basic. Extracts of lichen, red rose, red hibiscus, purple cabbage, turmeric can be used to indicate the nature of substance. So we can use extract of lichen, then red rose, as we have already prepared red rose extract in the lesson, then red hibiscus, purple cabbage, turmeric. We have also made the extract from turmeric and we have used in the form of strips to indicate the nature of the given substances. Substances that show different color in acidic and basic solution are called acid-base indicator. So there are substances, the substances which show different colors when they are added to a particular indicator. If they are acidic and basic, they are called acid and or base indicator, acid-base indicator. Acid turns the color of blue litmus to red. So when acid, we talk about acid turn, it is when it is drops of acid is added to blue litmus paper, it turns into red color. Bases turns the color of red litmus to blue. Extract of red rose gives red color in acidic solution and green color in basic solution. So when we use extract of red rose, how to make the extract? By immersing the petals of red rose in hot water, we get the extract of red rose. So when we add acidic solution to this, it gives red color, and when we add basic solution, it gives green color. The yellow color of turmeric turns red in basic solution but remain unchanged in acidic and neutral solution. This also we have read that the yellow color of turmeric uh, turns red in basic solution when on a strip of turmeric we put basic solution, it turns into red color. But when we add any acid to it or any neutral substance to it, the color will not change, it will remain yellow. An acid and a base neutralize each other, forming salt and water along with evolution of heat. So when an acid and base, they are mixed with each other, they neutralize each other, and then they form, what do they form? They form a salt and water along with evolution of heat. So when acid and base are added, they form salt, water and heat. Many day-to-day problems like a red ant bite, acidic or basic nature of soil and industrial waste can be attempted to be managed by the process of neutralization. So our daily problems, day-to-day problems can be treated by the way of neutralization. How can we do this? If acid is more, we can add base to it, and when base is more, we can add acid to it. So by this way we can easily manage, and we can remove our day-to-day problems. So these were some points which were there in the nutshell.
Let's come to the exercise now. Let us enhance our learning. A solution turns red litmus paper to blue. So there is a solution which turns red litmus paper to blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? So there is a solution which turns red litmus blue. So what does it means? It means that this solution which is turning red litmus blue is a base. Okay, so it is a base over here. When we talk about the solution which turns red litmus to blue, then it means that it is a base. So this must be basic in nature, or this must be a base over here. Okay, excess addition of which of the following solution would reverse the change? अब हम इसमें क्या एक्सेस एडिशन करेंगे जिससे ये सोल्यूशन जो है वो रिवर्स हो जाए? तो आपको बताया था ये कि जब बेस किसी चीज़, अगर हमारे पास बेस है, अगर हम उसमें एसिड ऐड कर दें तो क्या होगा इससे? जो है अगर हम बेस में एसिड ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वो, अगर बेस जो है एक्सेस एडिशन ऑफ विच सोल्यूशन, इसमें हम क्या एक्सेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सोल्यूशन जो है रिवर्स हो जाए, रिवर्स इन द सेंस कि ये ब्लू लिटमस टू रेड हो जाए, ठीक है। तो इट मीन्स हमें कोई एसिड इसमें ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर यहाँ पर बेस है, लाइम वाटर इज अ बेस, तो हम ये यूज नहीं कर सकते। बेकिंग सोडा, अगेन इट इज अ बेस। देन हेयर इट इज कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। देन विनेगर, विनेगर हेयर इज, vinegar is a acid, so we will add vinegar to it. Once we add vinegar to it, what will happen? It will reverse, okay, it will reverse the change. Now question number 2, you are provided with 3 unknown solutions labeled A, B and C, but you do not know which of these are acidic, basic or neutral. Upon adding a few drops of red litmus solution to solution A, it turns blue. तो आपको 3 यहाँ पे अननोन सोल्यूशन दिए हैं, ए, बी और सी। आपको ये नहीं पता कि वो एसिडिक है, बेस है या न्यूट्रल, ठीक है। आपने क्या करना है, अब इसमें आपको वो कह रहे हैं फर्स्ट सोल्यूशन जो था उसमें क्या किया कि रेड लिटमस ऐसा कुछ ऐड किया कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो गया। अगर रेड लिटमस ब्लू होता है तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि वो क्या होता है, अगर सोल्यूशन ए में रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो इट मीन्स इट इज अ बेस, ठीक है। When a drop of turmeric solution are added to solution B, then it turns red. अब आपको ये भी जो है लेसन के टाइम पे भी कराया था कि जो टर्मरिक का जो येलो कलर होता है वो बेसिक सोल्यूशन पे रेड हो जाता है, और इफ व्हेन वी टॉक अबाउट एसिडिक और न्यूट्रल उस पे वो कलर चेंज नहीं होता। तो सोल्यूशन बी, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन बी में भी कोई बेस है। Finally, after adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green. अब सी सोल्यूशन पे हमने क्या डाला है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो उसका रेड कलर आता है एसिडिक में, और ग्रीन कलर किस में आता है, बेस में। तो यहाँ पर कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज अ बेस, ठीक है, ये भी बेस है। Based on your observation, which of the following is correct sequence of for the nature of solution A, B and C? तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये तीनों क्या है, बेसिक है। तो हम यहाँ पे एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक एंड बेसिक, बेसिक, बेसिक एंड एसिडिक, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस color changing and all the things which are mentioned in the question. Okay, let's come to the next question. Observe and analyze figure 2.13, then 2.14 and 2.15 in which red rose extract paper strips are used. Label the nature of solutions present in each of the
कंटेन। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिया हुआ है कि 3 सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और ये रेड रोज जो है एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम रेड रोज यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट, तो कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में ये ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। जब ये ग्रीन कलर में चेंज होगा तो ये होगा, इट मीन्स कि ये क्या है, ये हमारा, इट मीन्स ये कोई बेस है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये किस में चेंज हो रहा है, यहाँ ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो इट मीन्स ये क्या है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर ये किस में चेंज हो रहा है, ये रेड में चेंज हो रहा है, ठीक है। जब ये रेड में चेंज होता है इट मीन्स इट इज एसिडिक, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। देखो ये है फर्स्ट है बेसिक बेस, सेकंड जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा न्यूट्रल, थर्ड रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a liquid sample from the laboratory was tested using various indicators, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंडिकेटर क्या है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और टर्मरिक। और चेंज क्या हुआ, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो गया और टर्मरिक में नो चेंज हुआ, ठीक है। बेस्ड ऑन द टेस्ट identify the acidic or basic nature of liquid, justify your answer. The liquid is acidic because acidic liquid changes blue litmus to red and there is no change of color with red litmus and turmeric, ठीक है। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आया, टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आया, हाँ। जब और ब्लू लिटमस, देखो रेड लिटमस अगर चेंज होता या कलर चेंज होता तो हम मानते कि ये मे बी दिस इज अ बेस, पर ये ऐसा नहीं हुआ, रेड लिटमस ब्लू नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एसिड है यहाँ पर, ठीक है। और ब्लू लिटमस रेड हो गया, ये आपको मालूम है ब्लू लिटमस रेड कब होता है, जबकि हम एक एसिड यूज करते हैं। टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आया, टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आया, इसका क्या मतलब है कि ये एक एसिड है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बेस होता तो ये अपना कलर जो है वो चेंज कर देता, ठीक है। बट यहाँ पर जो है टर्मरिक में कोई चेंज नहीं है, अगर बेस होता तो ये रेड कलर में हो जाता, पर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, इट मीन्स ये एक एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 5, मान्या इज blindfolded, she is given two unknown solutions to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should मान्या use to test the solution and why? मान्या जो है ना ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब उसकी पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। टू अननोन सोल्यूशन उसको दिए गए टेस्ट करने के लिए। डिटरमाइन वेदर, अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये एसिडिक है बेसिक है, और वो कौन सा इंडिकेटर यूज करें इन सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए। तो हमने एक इंडिकेटर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो स्मेल चेंज हो जाती है जिसके अंदर, तो स्मेल की चेंज से ही हम इजीली किसी भी एसिड या बेसिक चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिक में क्या चेंज होगा और बेसिक में क्या चेंज होगा। एज मान्या इज blindfolded, she should use olfactory indicator like onion whose smell remains same in acidic solution. अगर कोई acidic solution है तो smell same रहेगी, smell remains same in acidic but loses its smell with basic solution. और अगर कोई basic solution है तो उसमें जो है वो smell जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी से वो आइडेंटिफाई कर लेगी कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक। क्वेश्चन नंबर 6, could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of chapter, and what could be in the spray bottle? Make a table of various possible combinations and the color of writing obtained. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बच्चों को एक पेपर दिया गया था, वाइट शीट दी गई थी, जिस पर उन्होंने स्प्रे करने के बाद एक राइटिंग ऑब्टेन करी थी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मे बी उस स्प्रे बॉटल में क्या हो सकता है और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिससे कि हम पेपर पे राइटिंग को ऑब्टेन करें, ठीक है।
So see, material used, what we will use, we can use over here. Material हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए ऑरेंज जूस. ठीक है, ऑरेंज जूस आपको पता है क्या नेचर में होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर. ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, तो स्प्रे बॉटल सोल्यूशन क्या होगा, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, और इसका जो कलर है वो क्या चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, देन सोप सोल्यूशन. सोप सोल्यूशन आपको पता है, सोप सोल्यूशन होता है बेस, स्लिपरी टू टच, बेस. ठीक है, जब हम इसको टर्मरिक सोल्यूशन, स्प्रे बॉटल में टर्मरिक सोल्यूशन यूज करेंगे तो ये कलर क्या हो जाएगा, रेड. लाइम वाटर, लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, तो जब हम इसको रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ यूज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन. ठीक है, और स्प्रे बॉटल में क्या है हमारे पास, टर्मरिक सोल्यूशन एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट. ठीक है, सो ये मटेरियल यूज करके ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम ये मटेरियल यूज करें तो स्प्रे बॉटल में ये सोल्यूशन के साथ वो ये कलर आएगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 7. Grape juice was mixed with red rose extract. The mixture got a tint of red color. What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer. तो if baking soda is added to grape juice, ठीक है, ग्रेप जूस क्या है आपको मालूम है, ग्रेप जूस क्या होता है, खट्टा होता है, तो इट इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, कोई भी चीज जो एसिडिक नेचर में है वो चेंज हो जाएगी रेड से ग्रीन में. ठीक है, तो इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू ग्रेप जूस एसिडिक है तो वो रेड से ग्रीन में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स दैट सोल्यूशन इज नो मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा विच इज द बेस हैज न्यूट्रलाइज्ड इफेक्ट ऑफ एसिड. ठीक है, ग्रेप जूस जो हमारा एसिडिक है नेचर में, उसको जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ, एसिड को जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स करते हैं तो एक रेड कलर आता है. हमने क्या करा, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड करा तो क्या होगा, तो अगर हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा जो है वो बेस है तो वो कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में. ठीक है, और सोल्यूशन जो है वो एसिडिक नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो एसिड जो है उसका जो असर है वो खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस. कीर्ति ने एक अपनी ग्रैंडमदर को एक सीक्रेट मैसेज जो है वो लिखा यूजिंग ऑरेंज जूस. कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज, विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल. कीर्ति ने एक मैसेज लिखा, ठीक है, यूजिंग ऑरेंज जूस. ठीक है, अब वो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसको कैसे रिवील करेंगी देखेंगे. ठीक है, क्या स्प्रे करें उस पर कि उससे वो रिवील हो जाए, किस इंडिकेटर को यूज किया जाए. हर ग्रैंड मदर शुड यूज रेड रोज इंडिकेटर और एक्सट्रैक्ट इन रिवीलिंग द मैसेज. व्हेन द रेड रोज एक्सट्रैक्ट विल बी स्प्रेड ऑन द मैसेज इट विल अपीयर इन रेड कलर. ठीक है, क्योंकि ये जूस है, ऑरेंज जूस है, तो ये खट्टा होगा, सोर होगा, तो इट इज एसिड. तो जब एसिड रेड रोज के साथ, रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ ट्रीट होता है तो वो रेड कलर में आ जाता है. तो इसी, अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट को स्प्रे कर देंगे तो वो मैसेज जो है रेड कलर में अपीयर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. So this already we have done in the lesson also. टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो है, टर्मरिक से टर्मरिक पेस्ट बनाकर आप उसको ड्राई करके उसकी स्ट्रिप्स बना सकते हैं, और रेड रोज पेटल्स को इमर्स करके हॉट वाटर में आप जो है वो उसका एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं. तो आई हैव टेकन हेयर रेड रोज. नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी prepared by extracting them from natural sources like plant, lichens and flowers. तो नेचुरल सोर्सेज जो है कौन से हैं, प्लांट, लिचन्स, फ्लावर्स, इनसे बन सकता है. रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन बी मेड बाय इमर्सिंग रेड रोज पेटल्स. रेड रोज पेटल्स को अगर हम हॉट वाटर में इमर्स कर दें, भिगो के रख देंगे, तो वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो बन जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 3 liquids are given to you. One is vinegar,
another is baking soda solution, and third is sugar solution. Can you identify them using turmeric paper? Explain. देखो 3 यहाँ पर हमें क्या दिए हैं, लिक्विड्स दिए हुए हैं, ठीक है। जब हमें 3 लिक्विड्स दिए हैं, उनमें से एक जो है ना वो है विनेगर, ठीक है, एंड अनदर इज बेकिंग सोडा। दूसरा कौन सा है, बेकिंग सोडा। आपको पता है विनेगर खट्टा होता है, ठीक है, सोर होता है, तो ये क्या है, इसको पहचानने का तरीका है कि ये एसिड है या बेस है। दिस इज एसिड, ठीक है। विनेगर क्या है, एसिड, ठीक है। और बेकिंग सोडा सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो है वो स्लिपरी होता है, तो दिस इज अ बेस। सो विनेगर is acid and baking soda is a base. And third is sugar solution. sugar solution जो है that is neutral, ठीक है। तो 3 सोल्यूशन है हमारे पास। अब हम इसको हमें टेस्ट करना है टर्मरिक पेपर के साथ। तो टर्मरिक पेपर के साथ हम इसे किस तरह से टेस्ट करेंगे, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। आपको मालूम है कि जो टर्मरिक होता है, ठीक है, उसका येलो कलर अगर बेसिक सोल्यूशन के साथ, मतलब अगर हम बेकिंग सोडा के साथ बेस के साथ उसको मिक्स करें तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम उसको एसिड के साथ, विनेगर के साथ और न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ लाइक शुगर सोल्यूशन के साथ हम उसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। So turmeric paper can be used to test basic substance like baking soda solution because it is yellow, its yellow color will change into red, ठीक है, वो रेड में चेंज हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेसिक सब्सटेंस, जब बेसिक सब्सटेंस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा जैसे कि विनेगर और शुगर सोल्यूशन, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इट विल नॉट चेंज इट्स कलर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस, ओके। Question number 11. The extract of red rose turns the liquid X to green. एक जो रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो लिक्विड एक्स को ग्रीन में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। what will be the nature of liquid X be? तो लिक्विड एक्स क्या है, अब आपको पता है जब रेड रोज होता है तो रेड रोज जो है वो रेड कलर देता है अगर वो एसिडिक हो, और अगर वो बेस हो तो वो कौन सा कलर देगा, वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। what will happen when excess of आंवला जूस is added to liquid X? आंवला जूस क्या है यहाँ पर, आंवला मतलब खट्टा, तो वो सॉर टेस्ट है, तो आंवला जूस जो है यहाँ पर एसिड है, ठीक है। अगर कोई भी एक्सट्रैक्ट रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ हम किसी लिक्विड को लेकर ग्रीन कलर बनता है तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो नेचर में कैसा है, वो नेचर में बेसिक है। और अगर हम उसमें आंवला जूस ऐड करेंगे तो एसिड ऐड कर रहे हैं हम उसके अंदर, ठीक है। लिक्विड एक्स इज अ बेस। बेस क्यों है आपको मैंने बता दिया कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ अगर आप किसी लिक्विड को ऐड करते हो और वो ग्रीन कलर में चेंज होता है तो इट इज कॉल्ड बेस, it is a base. Amla juice is acidic in nature. When excess of amla juice is added to liquid X, the basic solution will become acidic. तो जैसे ही हम उसमें excess डालेंगे आंवला जूस का, तो आंवला जूस का जो नेचर है वो उस जूस के अंदर मिक्स हो जाएगा, मीन्स वो एसिडिक बन जाएगा, बेसिक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये आपको जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट में किया भी था। कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन, जब चैप्टर रीड किया था तो लास्ट में हमने ये क्वेश्चन किया भी था, उसमें रीडिंग में किया था। इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट्स शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। एक गार्डन है जहाँ पे प्लांट्स जो हैं उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा। सो द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर। सॉइल कैसा होगा नेचर में, इसका मतलब एसिडिक हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ द सॉइल कैन बी, और कैसा हो सकता है सॉइल, बेसिक भी हो सकता है। अगर एसिड ज़्यादा होगा तब भी ग्रो नहीं करेंगे और बेस ज़्यादा होगा तब भी ग्रो नहीं करेंगे। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉइल। इसमें हम कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं सॉइल को टेस्ट करने के लिए। सो रेड रोज इंडिकेटर,
ठीक है। रेड रोज इंडिकेटर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि कलर जो है जब जैसे चेंज होगा तो वील कम टू नो कि जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो रेड रोज इंडिकेटर कैन बी यूज टू चेक द नेचर ऑफ सॉइल। द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद, एसिडिक सॉइल अगर ज़्यादा है एसिड सॉइल में तो उसको हम किससे ट्रीट कर सकते हैं? वी कैन ट्रीट इट विद लाइम, क्योंकि लाइम क्या है, लाइम चूना होता है, इट इज़ अ बेस। ठीक है। अगर एसिडिक ज़्यादा है तो हम बेस यूज़ करेंगे, और अगर बेसिक ज़्यादा है तो हम एसिड या और एसिड यूज़ करेंगे। तो the basic soil can be treated with manure or composted leaf. Okay. So this way you have to complete this flow chart, and with this we have come to the end of this video. I hope you have understood all the questions and the summary as well. Now I'll come up with the important points of this lesson which will help you further to study in a better way. So see you all in my next video. Stay tuned to my channel. Thank you. Goodbye.